تھا تو اس حوالے سے ایک تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اس ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، اور اس سلسلے میں جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کریں گے کہ وہ اپنا اتحاد ختم کر کے ملک اور قوم پر رحم کریں اور ملک کے مستقبل اور عوام کی بدحالی جو اس وقت ہے اس کو مد نظر رکھیں اور ایسی حکومت کے اتحادی بننا جو ہے وہ شاید اب مزید سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک وفد بھی تشکیل دے رہے ہیں جس کے ارکان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، جو حلیف جماعتوں سے رابطہ کرے گی اور ان کو اپنے اس موقف پر قائل کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو فی الحال تو ہم نے اب یہ فیصلہ کر دیا۔ مولانا صاحب کا فیصلہ تو کر لیا گیا، عدم اعتماد کب لائیں گے، عدم اعتماد کی تاریخ کون سی ہوگی، اس سے آگاہ کر دیں۔ جی میں نے عرض کر دیا ہے آپ سے کہ پہلے ہم کچھ جو پیشگی اس پر ہوم ورک ہوتا ہے وہ مکمل کریں، دوسری جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں کیونکہ اس کے بغیر عدم اعتماد کا ووٹ مکمل نہیں ہوگا، تو ہم نے اس کے لیے ظاہر ہے جی کہ ووٹ بھی تو مکمل کرنا ہے، صرف لفظ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک روایتی طور پر ایک چیز پیش کر دی اور بس ختم ہو گئی بات۔ مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک تو دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک تو لانگ مارچ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا سوال یہ ہے بحیثیت پی ڈی ایم سربراہ کے آپ بلاول بھٹو زرداری سے معذرت کریں گے کہ یہی بات انہوں نے ڈیڑھ سال پہلے کی تھی جو آج آپ اعلان کر رہے ہیں، کیا پولیٹیکل غلطی تھی مگر نہ آج عمران خان شاید اقتدار میں نہ ہوتے؟ دیکھیے ہمیں ہٹا رہے ہیں، لڑا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہاں لاہور میں بھی شاید اور لیکن اسلام آباد میں تو بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ میں ہدف ایک ہی رکھوں گا اور کبھی میں کسی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ ہزار اختلاف کے باوجود میں پبلکلی جنگ نہیں لڑوں گا۔ مجھے اس کا جواب خوب آتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اور ایسا آتا ہے کہ آپ بھی اش کریں گے جی، لیکن نہیں دوں گا، اس لیے کہ اپوزیشن پارٹی کی ایک جماعت ہٹ ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بہرحال اپوزیشن گروپ ہے اور اپوزیشن کے ساتھ دو محاذوں پہ جنگ لڑنا یہ تو سیاسی لحاظ سے میرے خیال میں کوئی دانشمندی والی بات نہیں ہے۔ آپ کو پیپلز پارٹی پر اعتماد ہے، پیپلز پارٹی کی جماعت پر آپ اعتماد رکھتے ہیں؟ دیکھیے سیاست میں جب آپ بڑے اقدامات اور بڑے فیصلے کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر بڑا دل بھی کرنا پڑتا ہے، اور جو مشترکات ہوتے ہیں ان کے لیے حالات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ پچھلی دفعہ تو اس وقت مشترکات نہیں تھے، اس وقت ایک اتفاق رائے موجود نہیں تھا، اب وہ حالات بدل گئے ہیں، اس وقت کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھے، اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو حالات کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آگے اور آپ نے کہہ دی اور آپ کے لیے ماحول موافق نہیں ہے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ بے وقت کی راگنی کیوں کہی آپ نے جی۔ تو لہذا اب ہم سیاسی لوگ ہیں اور بڑے اتفاق رائے اور سوچ سمجھ کے ساتھ، لیکن یہ بات ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے کہیں گے کہ جو اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے والی بات ہے اس کے مراحل ابھی باقی ہیں، اس پر کام کہ پی ڈی ایم نے جتنا سا ایک جمہوریت کے لیے فائٹ کی ہے، اگر حکمران جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پٹاری میں کچھ نہیں، اس پہ ہم پھر بھی زندہ ہوں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی دی ہے پھر بیٹھیں گے، اس پر بات کریں گے، فیصلہ کریں گے کیا کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹائم فریم نہیں دیا، 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، 23 مارچ کو آپ کا لانگ مارچ کا اعلان ہے، تو ٹائم فریم کتنا ہے؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پھر وہی کروں گا کہ تھوڑا گراؤنڈ بننے تک مہلت دیجیے کہ ہم ذرا دیکھیں، پھر دوبارہ میٹنگ بھی ہوگی ہماری کہ گراؤنڈ کس حد تک تیار ہو چکا ہے۔ بغیر تیاری کے، بغیر گراؤنڈ بنائے ہوئے ایسی بات کہنا پھر یہی ہوگا کہ جی آپ نے کل بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا کام کرنے دیجیے۔ جہاں تک ہے 23 مارچ کا مسئلہ جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ ہم نے اب
फैसला बरकरार है। स्टीयरिंग कमेटी को हमने कह दिया है कि फौरी तौर पर उसकी जुज़ियात और तफसीलात जो हैं वो फौरी तौर पर तय करके हमें रिपोर्ट करें। एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस हवाले से उसकी बड़ी अहमियत है कि पीडीएम का मौक़िफ़ क्या है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो इस पे आ चुका है, लेकिन पीडीएम का मौक़िफ़ क्या है कि अगर तहरीक अदम एतमाद फर्ज कर लिया जाए, अगर कामयाब हो जाती है तो आने वाली हुकूमत 1.5 साल के लिए होगी या इमीडिएटली असेंबली तहलील करके आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे? सारे कार्ड थोड़ी दिखाएंगे हम। सवाल संजीदा है, सवाल संजीदा है, लेकिन जवाब को बाकी है। एक जैसे ले रहे ना सही साहब, एक फरमाइएगा कि अगर हलीफ जमात किसी वजह से कायल नहीं हो पाती, जो कि पीडीएम का मौक़िफ़ है, तो ऐसी सूरत में आप समझते हैं कि आपके पास इतने नंबर्स होंगे कि तहरीक अदम एतमाद फिर भी पेश कर सकते या लॉन्ग मार्च की फिर बैठेंगे हम आपस में, फिर बैठेंगे। अब इस साइड से जी आरिफ मलिक साहब, तैयारी नहीं थी तो इसका ऐलान क्यों किया है? किस चीज़ का? अगर अदम एतमाद की तैयारी नहीं थी फैसला किया है, नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, तो फिर तो फिर ऐलान किस लिए किया ये इसलिए किया है कि हमने करना है और कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। आरिफ मलिक आपने तय किया हुआ है कि ये लेके आनी है तरीके एतमाद, तो क्या पहले ये आप लोग तीनों ऐवानों में लेके आएंगे या सिर्फ कौमी असम्बली वज़ीर आज़म के खिलाफ लेके आएंगे तरीके एतमाद? हम जहाँ भी ला सकेंगे, विफाक से लेकर सुबह तक जहाँ भी हमें ग्राउंड मिलेगा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं, सिंध हुकूमत के खिलाफ नहीं। नदीम चौधरी आपका हो गया, उल्फत भाई हो गया, उल्फत भाई हो गया, प्लीज मिन्नत है। नदीम चौधरी क्लियर है कि अपोजिशन के पास नंबर पूरी नहीं है, आपको यकीनी तौर के ऊपर नाराज हुकूमती अराकीन है, उनकी साइड लेनी पड़ेगी। क्या आप ये नहीं समझते कि ये वो हॉट स्टेटिंग है, छांगा मांगे की सियासत है? बाज़ अमीर जरूर होगा, बाज़ अमीर। एक बात ध्यान में रखें, हमने इस बात पर बिल्कुल हतमी राय कायम की है कि हम इंडिविजुअल को अप्रोच नहीं करेंगे। अच्छा मियां साहब आप बता दें क्या पार्टी से बात एम्पायर न्यूट्रल है? आपका हो गया था, भट्टी साहब हो गया, अदनान आपकी हो गया था, भट्टी साहब हो गया, अदनान एम्पायर कहती है उसे जो न्यूट्रल हो। अदनान मियां साहब ये बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन जो है इमरान खान को हटाने की बात की, क्या समझते हैं कि जिस तरह अदम एतमाद है या लॉन्ग मार्च है, कब तक इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी? देखिए, ये तो अल्लाह ताला को इल्म है। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश और जतन करेंगे, एक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात को सामने रखते हुए, गुरबत, बेरोज़गारी के घरों में जिनके घरों में उसने डेरे डाल रखे हैं, वो करोड़ों लोग हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और जालिम हुकूमत से जान छुड़ाएगा। तो उसके लिए मरियम साहब आप बताइएगा, मरियम साहब आप बता दें। हो गया लास्ट क्वेश्चन ले लें। आपसे सवाल है कि जब पीडीएम बनी थी उस वक्त भी आपने तारीखें दी थी, आज अदम एतमाद का फैसला हो गया, आप कोई तारीख दे दें कब तक हुकूमत चली जाएगी? जवाब अभी दिया है ना आपको, आज दो बड़े बात कर रहे हैं तो मैं आज सुन रही हूँ। चले बस मेरे ख्याल से सबका हो गया जब रिपीट हो रहे हैं। बस आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन जी। जहांगीर तरीन के भी अरकान असेंबली कोई आपके साथ? देखिए, मैं बस साफ बात कह रहे हैं आपसे कि इंडिविजुअल से हम रब्ता नहीं करेंगे, पीटीआई के अरकान से हम रब्ता नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स हमसे रब्ता करेगा और अपने तौर पर उसके कोई जो भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये कि हम उसको कोई लालच दें, उससे कहें कि भाई हम आपको पैसे देंगे, आपको सीटें देंगे, आप फलां देंगे, ये तस्वुर कम से कम हमसे कोई तवक्को नहीं। जी बिल्कुल सही। बस ये आखिरी जी, अब लास्ट है। मोहतरमा मरियम बीबी और बिलावल के दरमियान जो है खिलाफत खत्म करवाए, लास्ट मीटिंग में आपने बताया, दरमियान में मैं आ गया हूँ। क्या आपने मौलाना के और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी आपने इनको ब्रिज कर दिया है? क्या पीपल्स पार्टी की वापसी का इम्कान है पीडीएम में? मौलाना के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात तो मेरे मौलाना से ताल्लुकात से भी पुराने हैं। दोस्त है आप मौलाना साहब। थैंक यू। आपकी एंट्री नहीं हुई आज।
PDM के रहनुमा इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तफाक राय किया है कि हम इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। हम जमातों से राब्ते में हैं कि मुल्क पर रहम करें। ऐसे हुकूमत के इत्तेहादी बंदे मुल्क के लिए मुफीद नहीं हैं। हमने एक वफ्द भी तश्कील दे रहे हैं जो हरीफ जमातों को कायल करने की कोशिश करेगा। हम कुछ होमवर्क करके ही इस पर अपना बयान लाएंगे, वोट पूरे करके ही अदम एतमाद लाएंगे। इस हुकूमत का इक़्तिदार में रहना मफाद में नहीं है। हम इत्तेहादी जमातों से नहीं लड़ेंगे। अपोजिशन पर दो महाजों पर जंग नहीं लड़ सकते। पीपल्स पार्टी पर एतमाद रखना सियासत में बड़ा दिल रखने के बराबर है। हालात का इंतजार कर रहे हैं। हम इसी तरफ से भरपूर कोशिश करते रहेंगे। गुर्बत और बेरोज़गारी से अवाम मर रहे हैं और हम अवाम को बचाएंगे। इस एक्टिविटी पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज़कियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल आखिर लुब्बे लुबाब यह है कि पीपल्स पार्टी की जो चॉइस थी उसको कबूल कर लिया है, यानी अदम एतमाद के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंसेंसस डेवलप हो गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि माजी में जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि हम अगर अपने मेंबरान की तादाद पूरी करें और कुछ नाराज़ अरकान जो PTI के साथ हैं उनको मिला के अदम एतमाद की तहरीक लाएं तो हमें सड़कों पर आकर एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त भी शायद PMLN ये समझती थी कि एक तो इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आनी चाहिए, दूसरा ये कि शायद अरकान की तादाद जो है मतलूबा वो पूरी ना हो सके। लेकिन पिछले कुछ अरसे से अपोजिशन इस बात का दावा कर रही थी कि बहुत से अरकान हुकूमत के साथ जो हैं वो जो इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन का साथ देने को तैयार हैं। इसलिए तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और बजाय इसके कि सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाए, बेहतरीन ऑप्शन जो है वो वोट पूरे करके तहरीक एतमाद पेश कर दी जाए। अगर आप देखें पिछले चंद दिनों की सियासी सूरत हाल तो उससे आपको अंदाज़ा लगता है कि बहुत से ऐसे अरकान हैं जो PTI से भी नाराज़ दिखाई देते हैं और अपोजिशन के अरकान जो हैं वो भी खासे उन्होंने अब उनको इकट्ठा भी किया है और इस बात का इम्कान है कि अदम एतमाद की भरपूर तहरीक लाने में अपोजिशन कामयाब हो सकती है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब।